Let's start the first. In addition to rock particles, the soil contains yes, all these things are given in the third option. Minerals, organic matter, air and water. So you can mark that correct. The water holding capacity is highest in clay soil. Clay soil की water holding capacity सबसे ज़्यादा होती है. It is option B. Third one. Yes. It is match the column. A home for living organism. बिल्कुल. All kinds of soil are a home for a living organism. Even some organisms, they used to live in sandy soil, clay soil and loamy soil. Thank you, Chief. Second, upper layer of soil. Yes, upper layer of soil is usually dark in color. What about the sandy soil? Yes. बेटे एक और ऑप्शन है, लेसर अमाउंट ऑफ ह्यूमस. ठीक है, तो सैंडी सॉइल लार्ज पार्टिकल्स में भी आ सकता है और लेसर अमाउंट ऑफ ह्यूमस में भी आ सकता है. ये दोनों ऑप्शंस करेक्ट है. सिंस हम मैच कर रहे हैं तो नेक्स्ट ऑप्शन है मिडल लेयर ऑफ सॉइल. ठीक है, तो ये आपका लेसर अमाउंट ऑफ ह्यूमस के लिए ही सेटल है. ठीक है, मिडल लेयर ऑफ सॉइल हैविंग लेस ह्यूमस. क्लेई सॉइल बिल्कुल स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं और बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं. नाउ एक्सप्लेन्स हाउ सॉइल इज फॉर्म्ड. हाँ जी, आगे आ जाओ प्लीज, आगे आके बोलो. एक मिनट, आओ आओ आगे आओ उठ के. 2 मिनट्स. Come forward. बोलो. How soil is formed? Soil is formed by the breaking down of पहले rocks. पेज नंबर बता दे, सारे बच्चे देखो. Page number 97. 97 Soil is formed by the breaking down of rocks by the action of wind, water, and climate. This process is known as weathering. The nature of any soil depends upon the rocks from which it has been formed and the type of vegetation that grows in it. ठीक है बच्चे, देखो नो डाउट इसमें वेदरिंग वाला पॉइंट है. वेदरिंग आपको बताया था, साथ ही साथ नेचर ऑफ द सॉइल है और ये आपका वन वर्ड क्वेश्चन है. प्लीज, नेचर ऑफ द सॉइल डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ द रॉक फ्रॉम विच इट इज फॉर्म्ड. और इसके साथ में आपने एक पॉइंट और ऐड करना है. आफ्टर दिस वेदरिंग द ऑर्गेनिक मैटर इज एडेड टू इट विच इज कॉल्ड एज ह्यूमस. हाँ जी, ह्यूमस वाला पॉइंट आप ऐड कर सकते हो. सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 2. प्लीज बुक में 2-3 जगह दिया हुआ है आपके, जब आप बुक से देखते हो. हाउ इज क्ले सॉइल यूजफुल फॉर क्रॉप? हाउ इज क्ले सॉइल यूजफुल फॉर क्रॉप्स? कौन बताएगा? हाँ जी, आप आ जाओ फर्स्ट बेंच. स्पीक आउट. पहले पेज नंबर बताओ सबको. Loudly. Page number 103. Clay and loamy soils are both suitable for growing cereals like wheat and gram. Such soils are good at retaining water. They are useful in lentils and other pulses. Loamy soil which drain water easily are required for cotton. Sandy loam or loam which drain water easily. बेटे लोमी सॉइल का तो पूछा ही नहीं. अब यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन है. आपका क्वेश्चन ये वाला जो आंसर है ये 2 जगह दिया हुआ है. एक 103 पेज पे जो आपने बोला, एक 104 पेज पे, उसमें स्पेशली मेंशन्ड है. बट अल्टीमेटली इसका यही आएगा कि क्ले सॉइल helps to retain water and it is good for those crops that need more water. Right? 104 पेज पे भी दिया हुआ है. Crops
such as wheat are grown in fine clay soils because they are rich in humus and are very fertile. Obviously पैडी के लिए तो है ही बेस्ट. Yes, हाँ जी. Next पहले पढ़ने तो दीजिए. Differences between clay soil and sandy soil. I hope very clearly we had done that. So you guys will carry on by yourself. Sketch the cross section. It is to be done in the class. It is already done. Will you draw the diagram? हाँ, अगर आपने बच्चे डायग्राम पहले ही बनाया हुआ है ना, क्योंकि आपको डायग्राम्स दोनों ही बनवा दिए थे. अगर डायग्राम if you have done, तो no need to draw it again. Razia, now next there is a question. Actually, it is a form of a numerical. Razia conducted an experiment in a field related to the rate of percolation. She observed it took 40 minutes for 200 ml water to percolate. It means water percolated. Water कितना percolate हुआ means water collected कह सकते हो आप, या water percolated. Amount of water that gets percolated. ये कितना है? 200 ml. And time taken. Now what we have to calculate? Rate of percolation. How will you calculate the rate of percolation? हाँ जी. बेटे कटिंग तो कर लोगे आप, पर प्लीज 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 फॉर्मूला लिख लेना. राइट, तो मैं थोड़ा सा शॉर्टकट काम कर रही हूँ. व्हाट आई डिड, मैं आपका फॉर्मूला यहीं पे लिख रही हूँ. रेट ऑफ परकुलेशन, रेट ऑफ राइट इज इक्वल्स टू 200 over 40. कितना आएगा? कर लेंगे बच्चे. ये 2-3 नंबर में ऐसे न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं एंड दीज मार्क्स आर क्वाइट इजी टू ग्रैब. क्लियर? ये मार्क्स तो आपको स्किप करने ही नहीं चाहिए. 2-3 नंबर में ऐसे क्वेश्चंस हमेशा आ ही जाते हैं. नेक्स्ट, एक्सप्लेन हाउ सॉइल पोल्यूशन एंड इरोजन कैन बी प्रिवेंटेड. तो इसके 2 अलग अलग स्टेप्स बनेंगे. प्रोसेसेस आप दोनों को क्लियर है? प्रोसेस लिख के उसको 1 लाइन में एटलीस्ट एक्सप्लेन करना. अगर डिफॉरेस्टेशन लिख रहे हो तो डिफॉरेस्टेशन आपने एक्सप्लेन कर दी. सॉरी, प्रिवेंटेड है तो एफॉरेस्टेशन आएगा. हाउ सॉइल पोल्यूशन कैन बी प्रिवेंटेड बाय एफॉरेस्टेशन. कैन एनीवन टेल मी? प्रिवेंटेड बाय एफॉरेस्टेशन. या एफॉरेस्टेशन सॉइल पोल्यूशन को प्रिवेंट ही नहीं करता. हाँ, एफॉरेस्टेशन इज अ पॉइंट फॉर सॉइल इरोजन. ठीक है? हाउ? बिल्कुल ठीक है. Because the roots of the trees bind the soil particles, so the upper layer don't get eroded. ठीक है? Please बच्चे kindly explain these points. Next, there is a crossword puzzle which you can solve it by yourself, and the question to be done on the notebook are 4, 5, 8 and 9. ठीक है? होमवर्क भी है 2 questions. Okay ji, clear? That should be your homework. And if it is clear, the chapter is clear, then we will shift to the next chapter. हाँ जी, किसमें? बिल्कुल, ये क्रॉप्स, स्पेशली आपकी वो वाली क्रॉप कौन सी है? राइस. राइस वाली क्रॉप तो होती है उसी में.
Yes, children, I think it is clear. So, Angel, नेक्स्ट चैप्टर पे चले बच्चे. हाँ जी, नेक्स्ट इज अ क्वाइट इंटरेस्टिंग चैप्टर. यू गाइस विल एंजॉय दिस चैप्टर. और बहुत सारे बच्चे इस चैप्टर में एक्चुअली बहुत एंजॉय करेंगे. दैट इज चैप्टर नंबर 14, इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स. नहीं करना, ये ज्यादा इंटरेस्टिंग है. इसमें घर में बैठ के आप बहुत कुछ बना सकते हो. अब ये एंजल, बायो का ट्रांसमिशन बैठेंगे. हाँ जी बच्चे, सो प्लीज ओपन योर बुक्स एंड नोट्स नोटबुक. व्हाट टू स्टार्ट. आज मैं पेज नंबर 161 पे बेटे चैप्टर दिया हुआ है. आज हम इस चैप्टर की डिटेल्स में नहीं जाएंगे. हाँ, एक टेबल बना हुआ है, उस टेबल की ही डिटेल्स करेंगे. बेसिकली व्हाट इज दिस, दैट इज सिंबल्स. You all must know what are the different symbols that are to be used in electric circuits. First is cell. Electric cell या simply cell आप जिसको बोलते हो, इसका symbol क्या होता है बेटे? You all know cell consists of two terminals. One is positive, other one is negative. तो सेल का सिंबल भी कुछ ऐसा ही होता है. वन बिग लाइन, अदर स्मॉल लाइन. द बिग लाइन रिप्रेजेंट्स पॉजिटिव टर्मिनल, स्मॉल लाइन रिप्रेजेंट्स नेगेटिव टर्मिनल. ठीक है, आप याद रखने के लिए प्लस और नेगेटिव साइन भी लगा सकते हो, या अगर आप सिंपली ऐसे भी ड्रॉ करते हो, दैट विल आल्सो बी करेक्ट. ये भी बिल्कुल ठीक है. ओके, और ये साइड्स पे ये जो मैंने लाइंस लगाई है ना, ये शो कर रही है कि ये आगे कनेक्टेड है, वायर्स होती हैं, राइट. तो अगर आपको सिंपली इलेक्ट्रिक वायर ड्रॉ करनी होती है, इट इज नॉट पॉसिबल कि हर बार जब हम सर्किट ड्रॉ करें तो उसमें सेल पूरा का पूरा ड्रॉ कर सके. तो वी यूज टू दीज सिंबल्स. ठीक है, how can we draw electric wire? By simple line. Simple straight line represents the electric wire. हाँ जी, are you noting down? आपके नोट्स कॉपी पे नोट डाउन हो रहा है. नेक्स्ट, बल्ब से पहले सेल का ही करते हैं, दैट इज बैटरी. बैटरी क्या होता है? एनीवन, व्हाट इज बैटरी? क्या? हाँ जी, दैट इज सिंपली कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स. अगर कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स हैं तो बैटरी का सिंबल भी ऐसे ही बना दूं. 1 cell, 2 cell, 3 cell, 4 cell, this is battery. 2 cells के कॉम्बिनेशन को भी बैटरी बोल सकते हो, और many cells के कॉम्बिनेशन को भी बैटरी बोल सकते हो. सॉरी, जितनी मर्जी लगा लो आप, 2 लगा लो बेटे. इट डिपेंड्स अपॉन द सर्किट कि हमें कितनी स्ट्रॉन्ग चाहिए. ठीक है, मिनिमम 2 शुड बी देयर. ये बैटरी होती है हमारी. इवन जो आप छोटी सी 9 वोल्ट बैटरी यूज करते हो ना, ब्लू कलर की, है ना, दैट कंसिस्ट ऑफ 2 सेल्स. वो 2 सेल्स की बनी होती है, उसके ऊपर लिखा होता है. आपके घर में इन्वर्टर्स है ना?
इन्वर्टर्स में देखना उसमें भी सेल्स हैं, वो लिक्विड सेल्स हैं, और देखना काउंट करना उसमें भी 6 से 8 सेल्स बने हुए हैं। कन्वर्टर अलग चीज है, बैटरी अलग चीज है। इवन बैटरी इज ऑल्सो देयर, बिल्कुल, दैट इज बैटरी। ठीक है, नेक्स्ट इट इज स्विच। स्विच को बेटे हम दो तरह से यूज करते हैं, आइदर टू इन ऑन पोजीशन, जब आपका स्विच ऑन होता है, प्लीज नोट इट डाउन, स्विच ऑन होता है मीन्स देयर आर टू डॉट्स and these are combined with a straight line. आपके दोनों डॉट्स एक स्ट्रेट लाइन के साथ कंबाइंड होते हैं। स्विच इन ऑफ पोजीशन, ऑफ पोजीशन में स्विच कैसे बनाओगे? अगेन द टू डॉट्स ओपन, ये आपका ओपन होता है मींस टू डॉट्स आर नॉट कंबाइंड विद ईच अदर। ये रहा, लाइन आपस में कंबाइन नहीं है ना दोनों डॉट्स के साथ, ये आगे फर्दर वायर के साथ अटैच है। मैं आपको सर्किट्स बना के दोबारा दिखा दूंगी सारे, ठीक है। नेक्स्ट इज बल्ब। क्या बना है बुक में आपकी? सेम ही तो है, ये देखो किसकी बुक में अलग बना है। नेक्स्ट इट इज, वो आपकी मर्जी है। हाँ जी बेटे, while drawing the symbol of a bulb, the major mistake is we used to draw the bulb like this and forget to make a circle. So please draw the circle. ठीक है, बल्ब को आप सर्कल में ही करेंगे। दिस इज बल्ब, और अगर आपका बल्ब ग्लोइंग है तो हम यहीं पे एरोज बना देते हैं like this. हाँ जी, ओके जी, ये स्विच इन ऑफ पोजीशन में दोबारा लिख देती, ठीक है। यहाँ लिख दो ऊपर, राइट। सेम बेटा जैसे आप सेफ्टी पिन से आप लोगों ने ये एक्टिविटी बनाई भी होगी, सेफ्टी पिन को जब दूर हटा देते हो तो वो ऑफ हो जाता है, जब आपस में टच करते हो तो वो ऑन हो जाता है। दैट आर योर सिंबल्स। ये हम कहाँ यूज करते हैं? वी नॉर्मली यूज दीज सिंबल्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। नाउ व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक सर्किट? इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? The circuit which closed from one terminal to another. हाँ जी, जो सबसे ज्यादा बातें कर रहे हैं उनको सबसे पहले आंसर करना पड़ेगा। हाँ जी हिमालय, लास्ट बेंच, लाउडली बोलो। व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट?
It is a circuit that is connected by the battery and has a particular thing which has a particular function to run it off or on. Okay. Yes, last bench, please stand up. Last, Hanji. We are talking so much. Can you please tell me what is electric circuit? Perhaps you are searching for the definition. Hurry up, hurry up. Hanji, tell your partner. Please stand up. Last bench. What is electric circuit? और ये सबने किया हुआ. Loudly. Hanji, please. The path which electric. Yes. बैठ जाओ. बुक से देख के बोल रहे हैं. चलो. बिल्कुल ठीक है. The simplest answer is it is a path for the flow of electric current. Circuit is a path for the flow of electric current, right? And circuit diagram. दो चीजें होती हैं बेटे. एक तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? The simplest answer, path for flow of electric current, right? सेकेंड चीज हमारे पास है सर्किट डायग्राम, जो एक्चुअली हम लोगों ने करनी है. सर्किट डायग्राम क्या होता है? बैठ जाओ बेटा दोनों प्लीज. इट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ all the components of electric circuit by the means of symbols. ठीक है? What is circuit diagram? It is the representation of copy. पेज होगा. It is the representation of all the components. It is the representation of arrangement. लिख लो. Of the arrangement of all components of electric circuit by means of symbols. ठीक है? In form of symbols we used to tell the arrangement of various components of electric circuit, and this sort of diagram we used to call it as. हाँ जी बच्चे प्लीज बल्ब का डायग्राम देख लो. इसमें मेजर मिस्टेक आती है. चिल्ड्रन फॉरगेट टू ड्रॉ सर्कल्स, which is wrong. You must draw the circle, right? Essential components of a circuit. कोई भी सर्किट बनाने के लिए what are the necessity components? Wire, switch और bulb, cell. ठीक है?
Rest we will do tomorrow. रुक जा।